Good day in a good mood with the blessings of Allah. If anyone of you have any question regarding our previous lectures, please ask. Was there any confusion or problem in the lectures, slides, or in the reading material? You may ask if you have any. Is my voice clear to you? Yes, sir. Okay. So a few students among you are blessings for all of you. कोई ना कोई एक आध रिस्पॉन्स जो आ जाता है वो सबकी तरफ से फर्ज पाया अदा हो जाता है। एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल ही दीवारों को लेक्चर दिया जा रहा है। ओके, so we have started with enzymology. What are enzymes? What are their specific properties? How do we classify enzymes? And in our previous lecture and last lecture we have discussed about the classification of enzymes. Enzymes को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? 6. So we have 6 classes of enzymes, class 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You may remember the mnemonic ORTHLIB: oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and then ligase. Then we have discussed about a little bit about the subclassification. Oxidoreductase, oxidases, oxygenases, reductases, dehydrogenases. Transferases are so many. Group transfers, important one are kinases जो phosphate group को transfer करते हैं. So today we will discuss a little bit about the further things. How do enzymes work? Enzymes काम कैसे करते हैं? Mechanism of action of enzymes. As you know, enzymes increase the rate of reaction, and during this process they themselves are not utilized, and they appear at the end of reaction just as it is as they are before the start of a reaction. जैसे आते हैं वैसे ही वो at the end of the reaction भी हमें मिल जाएंगे. And a very good example जो मैं अक्सर क्लासरूम्स में दिया करता था, but here in online it also applies. Enzymes are just like students. They are present at the start of a lecture, and after completing the lecture they leave the class in the same state of mind in which they appear in the class. जैसे आप लोग लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्लास में एंटर होते हो उसी तरह ही आप लेक्चर खत्म होने के बाद चले जाते हो विदाउट एनी चेंज. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वाकई सुनते हैं, उनमें चेंज भी आती है और उन्हें कुछ बेनिफिट भी होता है, बट मेजॉरिटी आर जस्ट लाइक एंजाइम्स. जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं. ऐसा होता है या नहीं? Yes. No, sir. ऐसे ही No, है sir. सर. यस आई नो. नो सर, चले एटलीस्ट कोई 4 to 5 ऐसे हैं जो कि चेंज होके जाते हैं, बट मेजॉरिटी सेम, नो चेंज एट ऑल. So overview of enzyme action. This green molecule is an enzyme having an indented active site. First, it binds with the substrate by forming a enzyme substrate complex at the active site.
इस एक्टिव साइट पे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, then the chemical reaction would go on, and this substrate would have been converted into a product. So there is enzyme product complex. In the next step, this product would be removed from the enzyme's active site and enzyme as it is will be released. जैसा ओरिजिनल फॉर्म में था वैसे के वैसे वो दोबारा से आ जाएगा. इस सारी रिएक्शन में हुआ क्या, जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. And during this reaction there is an intermediate state that is known as enzyme substrate complex. पहले enzyme substrate complex बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी, enzyme सेपरेट हो जाएगा और फिर वो दोबारा से किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे जाके काम कर देगा. And keep in mind this chemical reaction is very fast. Enzymes may convert thousands of substrates into products per unit second. एक सेकेंड में ये थाउजेंड्स टू मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में. अगर हम वैसे बात करें तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में शायद ईयर्स लगा दे, सालों लगा दे कन्वर्ट होने में, लेकिन एंजाइम्स की वजह से ये सेकेंड्स में हो जाता है प्रोसेस. So we can divide the mechanism of action into these ways. Enzyme substrate binding, number one, how much energy changes occur, that is thermodynamic changes. And the last one, what would happen at the active site. Enzyme substrate binding, number one, ये कैसे बाइंड करता है ये भी हमने देख लिया था. और उसके बाद एनर्जी चेंजेस क्या आती हैं, और एनर्जी चेंजेस के बाद इस एक्टिव साइट पे प्रोसेस क्या होते हैं जिसके वजह से ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो इन तीन वेज में हम इसमें इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे. एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल. लॉक एंड की रिजिड मॉडल. एंजाइम्स have had predefined three-dimensional active site of a particular shape. एंजाइम्स के पास एक पर्टिकुलर शेप का ऑलरेडी एक्टिव साइट होती है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट वहाँ पे आके फिट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. बट दिस मैटर हैज सर्टन शॉर्टकमिंग्स. इट डज नॉट टेल अस अबाउट द थर्मोडायनामिक चेंजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स इनहिबिटर्स एंड एलोस्टेरिक चेंजेस. जो बहुत सारे थर्मोडायनामिक मैकेनिज्म है वो इस प्रोसेस से हमें मालूम नहीं हो सकते. According to this model, enzymes are present in a rigid form, having a particular shape, just like lock and key. A particular key would open this enzyme, not all the keys. Induced fit model. According to this model, enzymes are not rigid at all. They can modify their shapes, and their active site shape would be changed if some substrates bind with it. जैसे कि सबस्ट्रेट्स आगे बाइंड करेंगे इस एक्टिव साइट के साथ, इसमें शेप चेंज होगी, एंड दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. और उसके बाद फिर वहाँ पे आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा. Here you can see A, B, C. These are three parts of the active site, and they are far away from each other. But when this substrates binds with this enzyme, they come in close contact. A, B, C. So there is some change. It is just like this glove, surgical glove. अगर ये वैसे टेबल पे है तो इसकी शेप और होगी, लेकिन जब आप इसे परफॉर्म करेंगे, अपने हाथ पे चढ़ाएंगे तो इसकी शेप एक चेंज हो जाएगी. सेम वे दिस एंजाइम एक्टिव साइट्स चेंज इज देयर एक्टिव साइट पोजीशन एंड लोकेशन. ये सब चेंज होते हैं आपस में. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नो सेकंड पार्ट,
Energy changes during a reaction. All the chemical reactions have certain energy barriers which separate reactants and products, and that barrier is known as energy of activation, a higher state transition state which should be achieved before the completion of a reaction. Energy difference between and high energy intermediate is known as transition state, energy or free energy of activation. This one. A are separate. A is transition, a higher energy state, and B is product. So A should be converted into T before converted into B. पहले ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. These blue lines. A is present at certain energy level having a free energy delta G. B is present again at low energy state having its own free energy state, that is G for B. Energy difference between these two is known as delta G, free energy of the reaction. Now coming towards this T. T is a high energy intermediate, and energy required to reach this transition state is known as energy of activation. This one, this arrow. Here you can appreciate that this T is present at a much higher energy state than this reactant A. Now here comes the role of enzymes. What do enzymes do? They simply decreases this transition state energy or free energy of activation by providing some alternate routes so that this A may be converted into B with much easier route with much less energy. Enzyme simply decreases this free energy of activation. इन्होंने यहाँ से free energy of activation को कम किया है, so A B में convert हो गया. In our first lecture, we have discussed that enzymes cannot initiate a reaction, but they can speed up a reaction. Start नहीं कर सकते, speed up जरूर कर सकते हैं. In other ways, enzymes have no effect on overall delta G of a reaction. एनर्जी चेंजेस में जो इनिशियल है और फाइनल स्टेज है या जो इसमें चेंज आई है, इसमें एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है. लेटेंट एनर्जी ए की अपनी है, बी की अपनी है. जो एनर्जी चेंज आया उसमें भी देख लें, इस सारे रिएक्शन में एंजाइम्स ने कोई चेंज नहीं ले किया है. एंजाइम्स ने जस्ट क्या किया है, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी चेंजेस को फैसिलिटेट किया है. अगर एंजाइम्स ना हो तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में फिर भी कन्वर्ट हो सकते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ डेल्टा जी, लेकिन इसके लिए शायद टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. मुश्किल हो गया या बोरिंग हो ज़्यादा हो गया? Nobody is listening? Yes, sir. Yes, sir. ये सब मीन कि बोरिंग ज़्यादा हो गया या मुश्किल ज़्यादा हो गया या कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं सर, समझ आ रहा है. Sir, all of these. सर बोरिंग ज्यादा हो गए. बोरिंग ज़्यादा हो गया है. चलें कोई नहीं, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अगर बोरिंग ज़्यादा हो गया तो. कितने स्टूडेंट्स में हमें से जिन्हें हाइकिंग का शौक है या ट्रैकिंग पे कभी गए हो? Yes, sir. कोई भी नहीं है?
खैर आप सेंस में आ गए हो, अभी तो वैसे लॉकडाउन है, कोरोना है, उसके बाद आप लोग हाइकिंग भी करेंगे, ट्रैकिंग भी करेंगे, माउंटेन्स पे भी आप जरूर जाएंगे. So इंशाल्लाह. this diagram again the same thing. Lactose will have to be converted into glucose and galactose, substrate into product by achieving a higher transition state energy that is known as energy of activation. This one enzyme simply decreases this energy of activation, वो slope को कम कर देते हैं so that these reactants would easily be converted into products. Again जो रिएक्टेंट्स का इनिशियल एनर्जी स्टेट था और जो प्रोडक्ट्स का फाइनल एनर्जी स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया. जस्ट दिस जो इंटरमीडिएट स्टेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स उसमें चेंज लेके आते हैं. ए वेरी गुड एग्जांपल गिवन इन लिपनकॉट. हाउ टू रिमूव ए स्वेटर ऑफ अ बेबी. सबट्रेट इनिशियल स्टेट, you have to remove output of this sweater from this baby to make it a product. easy नहीं है. क्या होगा, सबसे पहले आपने इसको एक पर्टिकुलर शेप में लेके आना है so that this sweater may be removed. वो शेप क्या है, दोनों हाथ ऊपर. तो दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. मामा आएगी, मामा उसकी शेप बनाएगी, हाथों को ऊपर करेगी, हो गया. फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर अब ये इजीली रिमूव हो जाएगा. दैट इज ट्रांजिशन स्टेट. तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गया और ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये फाइनल जब ये रिमूव हो जाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है. इसमें जस्ट क्या है कि ये एंजाइम है लास्ट वन और ये क्या कर रहा है, उसे फैसिलिटेट कर रहा है ताकि ये इजीली स्वेटर मूव हो जाए या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. अगर एंजाइम ना हो तो शायद ये स्वेटर कभी भी रिमूव ना हो सके, बेबी खुद से नहीं कर सकता. प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट. दो वे हमने कर लिए. एनर्जी चेंजेस वाला प्रॉब्लम भी कर लिया और उसके बाद सबस्ट्रेट बाइंडिंग भी कर ली. सबस्ट्रेट बाइंडिंग, थर्मोडायनामिक चेंजेस एंड द लास्ट वन प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट पे ऐसा क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. No, this is a question which has been asked in your class so many times. What are different processes occur at the active site? Number one, describe the mechanism of catalysis at the active site. Active site पे catalysis कैसे होता है वो describe कर दें. Again the same thing. Simple way, multiple processes है, facilitate catalysis. So वो 4 प्रोसेस ये हैं. कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, एसिड बेस कैटालिसिस, कोवलेंट कैटालिसिस एंड कैटालिसिस बाय स्ट्रीम. एक क्वेश्चन जो आपने लास्ट में पूछना वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. एक्टिव साइट कैटालिसिस आपने हार्पर से करना है. I repeat, processes at the active site are mechanism of catalysis at active site. ये टॉपिक आपने हार्पर से करना है और ये इन स्लाइड से कर लीजिएगा. ये लिपनकॉट में, मुश्ताक में, हाशमी में नहीं दिया हुआ और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है. Catalysis by proximity. As the name shows, substrates should come closer to be activated and ultimately converted into products. एक दूसरे के proximal होना ज़रूरी है. जितना करीब आएंगे उतना ही products में convert ज़्यादा होंगे. Second, acid base catalysis.
proton donors, proton acceptors. Hydroxyl group donors, hydroxyl group acceptors are simply acids and bases. केमिकल रिएक्शंस में एसिड्स बनते हैं, बेसिस बनती हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट किया जाता है, प्रोटॉन्स को रिसीव किया जाता है, और इस सारे में एक्टिव साइट एज इट इज आर देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स में सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है. कैटालिसिस बाय स्ट्रेन, बॉन्ड्स पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, और प्रेशर एक्सर्ट करने से बॉन्ड्स टूट जाते हैं. इट्स जस्ट लाइक बेंडिंग ए स्टिक. आगे बस जो आपने कहानी पढ़ी भी होगी लकड़हारे वाली कि जी वो आता है, वो अपने बच्चों को वो लकड़ियाँ देता है, एक एक लकड़ी इजीली टूट जाती है. इट्स जस्ट लाइक एक्सर्टिंग ए स्ट्रेन और प्रेशर. बॉन्ड्स पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है, प्रेशर क्रिएट करने से वो टूट जाते हैं. सो दैट इज कैटालिसिस बाय स्ट्रेन. एंड द लास्ट वन, covalent catalysis by making covalent bonds. Covalent bonds coenzymes कोफैक्टर भी बना सकते हैं और एक्टिव साइट एज इट इज खुद भी बना सकती है. कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और उसके बाद रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा. लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड ट्रांजिट होते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं. और कोवलेंट बॉन्ड बनने से अल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन? सर एसिड बेस द्वारा बता दें. एसिड बेस कैटालिसिस, ये अभी हम थोड़ा सा डिटेल में भी करते हैं. अमाइनो एसाइल साइड चेन्स, ये कौन सी साइड चेन्स होंगे? अमाइनो एसिड्स के जो आर ग्रुप चेंज होती हैं, और हर अमाइनो एसिड की आर ग्रुप चेंज है, वो वाले, या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के आयोनाइजेबल ग्रुप्स. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में FMN, FAD, जो कोएंजाइम्स वाला पार्ट था वो वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, और इस एक्सेप्टेंस या डोनेशन की वजह से प्रोडक्ट्स बनती हैं. इसे हम अभी दोबारा देख लेते हैं. दैट इज एसिड बेस कैटालिसिस. इसमें एसिड्स भी बनते हैं, बेसिस भी बनते हैं. नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी. जितने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना उनमें कोलिजन ज़्यादा होगा. कोलिजन के वो इतना एक दूसरे से करीब आएंगे, और जितना वो एक दूसरे के करीब आएंगे एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे. दैट इज कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी. एंजाइम्स उन्हें एक दूसरे के प्रॉक्सिमल लेके आते हैं. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड इन एन आइडियल शेप टू इंटरेक्ट केमिकली. प्रॉक्सिमिटी की कोई और एग्जांपल हो सकती है या नहीं? बॉयज sitting together in the first row of a lecture hall, proximal हो गए, उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी. और बॉयज फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड द बॉय फ्रॉम द लास्ट रो, उनमें ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी. जो जितना एक दूसरे के करीब होगा उनमें फ्रेंडशिप उतनी ही ज़्यादा होगी. दैट्स द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. जितने एक दूसरे के करीब आएंगे उतना उनमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाएंगे. एसिड बेस कैटालिसिस. आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स, इसका क्या मतलब है? जब आपने अमाइनो एसिड्स स्टडी किए थे वहाँ पे आपने एक देखा होगा हिस्टिडीन मॉलिक्यूल. हिस्टिडीन साइड चेन्स आर इजीली आयोनाइज्ड. वो वहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है. दे आर नोन एज आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स.
of amino acids, side chains are prosthetic groups. FMN, FAD, FADH2. ये FAD प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो लॉस करेगा तो FADH2 से FAD बन जाएगा. So these prosthetic groups can accept or donate protons, so they can act as acids or bases. अगर अमाइनो एसिड प्रोटॉन दे रहा है तो वो एज एसिड काम करेगा या बेस काम करेगा? एसिड. If amino acid is donating a proton, then it may act as acid. And if amino acid is receiving a proton, then it can act as base. So ये donate भी करते हैं और accept भी करते हैं. And that is acid base catalysis. Aspartic protease enzymes family, pepsin, they can act as acid base catalysis. HIV protease, जो उसको एंजाइम्स एक्टिव करते हैं HIV वाले, वो भी एसिड बेस कैटालिसिस के थ्रू ही काम करते हैं. टू टाइप्स, जनरल एसिड बेस एंड स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस. स्पेसिफिक, these enzymes or our reactions are dependent upon protons only, that is हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होते हैं and they are independent of other acids and bases. प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शंस में चेंज आएगा, कम होगा तो फिर भी चेंज आएगा. बाकी जितने भी एसिड और बेसिस हैं उन सब की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है. जनरल में सारे एसिड और बेसिस की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है ओवरऑल रिएक्शन को. Catalysis by strain, just like exerting pressure on bonds, covalent bonds है, अनफेवरेबल कन्फिगरेशन में उन पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो बॉन्ड्स टूट जाएंगे. स्ट्रेचिंग और डिस्टॉर्टिंग ऑफ बॉन्ड्स. अब ये आई थिंक सो कि शायद स्लाइड, लेट्स सी ये चलती है या नहीं. Can you see anything? सर स्लाइड शो हो रही है बस. कोशलैंड इंड्यूस फिट मॉडल. उसके और कुछ नहीं आया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर इज सर्टन एनिमेशन. सो एनिमेशन आप लोग नहीं देख सकते ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. डजंट मैटर. सर हमने आगे फिजियो में देखी है. फिजियो में देख ली है, चलिए दैट्स गुड. अच्छी बात है. इसी ऐप में देखी है. ऐप में चलती है सर. सर वो एनिमेशन नहीं थी, वो वीडियोस वगैरह थी शायद. वीडियोस हैं, इसलिए मैं लास्ट में कोशिश करूँगा ये जो एनिमेशन हैं उन्हें ज़रा थोड़ा चेंज कर दिया जाए ताकि आप लोग इजीली देख लें. क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन को स्किप किया हुआ है. एनीहो, लास्ट वन, covalent catalysis. There is transient formation of covalent bonds between enzyme and substrates and then conversion to products. Digestive enzymes chymotrypsin and trypsin act through this covalent catalysis. सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि सर्टन सबस्ट्रेट्स हैं. जिस तरह पायरुवेट को अब जब फास्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे कोवलेंट कैटालिसिस होता है. पहले एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसके बाद
reactants products में convert होते हैं. You can simply remember the examples of chymotrypsin and trypsin. So what are 4 different sites mechanism of catalysis at active site? कौन से हैं? The proximity, acid base, covalent or strain catalysis. Proximity, acid base, catalysis by strain, and the last one covalent catalysis. ये just 4 names along with a little bit description, तो आपको full marks मिलेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं. Very important point, completion of reaction, enzymes returns to their original state. Cysteine, serine, histidine residues on enzymes participate in covalent catalysis, and they are very common in group transfer reactions. Group transfer enzymes कौन से होंगे? Kinases. कौन सी क्लास में ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं? ट्रांसफेरेजेस. एक्सीलेंट. सो ट्रांसफेरेजेस ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में कोवलेंट कैटालिसिस होती है, जिन्होंने पूरे ग्रुप्स को ट्रांसफर करना. फास्फेट ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में ये यूज होते हैं और वहाँ एक्टिव साइट पे हिस्टीडीन, सीरीन या सिस्टीन होंगे. सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग, सीरीन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हिस्टीडीन की साइड चेन में वैसे ये प्रोटॉन रिसेप्टर दोनों के तौर पे काम करती है. क्लासरूम में तो एट द एंड सिचुएशन ये होती थी. ऑनलाइन लेक्चर्स में शायद इससे भी बुरी है. जी सर. सो सर हमारे फिजिकल लेक्चर स्टार्ट होंगे 7 से. आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी क्लासेस में स्टार्ट हो गई हैं फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड. तो ऑन कैंपस क्लासेस का अभी आइडिया नहीं कि आपके साथ क्या किया जाता है, होनी है या नहीं होनी. सर हमारे सीनियर्स की क्लासेस तो हो रही हैं. यस आई नो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑन कैंपस, क्योंकि उनकी क्लिनिकल रोटेशंस हैं. आप लोगों की क्योंकि क्लिनिकल रोटेशंस नहीं है, जस्ट बेसिक्स नॉलेज है, लेक्चर्स हैं, तो इसलिए शायद अभी तक वो नहीं किया गया. ऑनलाइन क्लासेस में आपकी कंडीशन तो ऐसी ही होनी है जो अब है, कुछ पता नहीं चलना कि क्या हो रहा है. यस सर, कोई पता नहीं लगता क्या पढ़ रहे हैं, बस जब टेस्ट आता है तो फिर भूल लेते हैं. हाँ जी, जब टेस्ट आता है. सो अभी आपका फर्स्ट वीक या स्टार्ट ऑफ सेकेंड वीक में टेस्ट भी है बायोकेमिस्ट्री का. सर क्या सिलेबस होगा टेस्ट पर? वो अभी आपको बता दिया जाएगा. जो आपने स्टार्टिंग चैप्टर्स किए थे, सेल एंड देन प्रोटीन्स, उसी का टेस्ट होगा. सेल सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट असेसमेंट. सर जून के फर्स्ट वीक में या जुलाई के? जून फर्स्ट वीक नहीं, सेकेंड वीक के स्टार्ट में रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा टाइम दे दें. वैसे तो आप सब अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट से करना तो अपने यहाँ लास्ट 2 डेज में ही है. सर
सर थोड़ा सा और ज्यादा डिले नहीं हो सकता? एनाटॉमी का वाइवा है। किसका वाइब है? एनाटॉमी सर एनाटॉमी का वाइवा है। एनाटॉमी का फर्स्ट वीक में 9 जून को। 9 एक को। वीक हाँ तो तो होना चाहिए बायोकेम के लिए। सर एनाटॉमी के बाद रखिएगा। 9 ठीक है। सर थर्ड वीक में रख लिएगा प्लीज। अच्छा चलो 15 को ठीक है। ठीक है सर। ताकि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए। जी ठीक है सर। सर ठीक है। सर बायोकेम का भी वाइवा होता है, वाइवा होगा या क्या मतलब एमसीक्यू बेस होगा या क्या होगा? अभी देखते हैं। नीचे तो आप लोगों का एमसीक्यू टेस्ट होगा और उसके बाद हम वाइवास भी लेंगे, लेकिन आपका इनिशियल टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। अब आते हैं हम उस जिसका आप लोगों को इंतज़ार रहता है, अटेंडेंस। मार्क योर अटेंडेंस। जो बच्चे सोए हुए हैं वो सोए से खुद ही कर लें या वो भी कोई आपको दूसरा क्लास वाले कर देता है अटेंडेंस मार्क। अटेंडेंस भी खुद ही लगाते हो या अटेंडेंस कोई दूसरा मार्क कर सकता है? क्या करते हो? अटेंडेंस तो अपने ही पे रखती है। सर खुद खुद लगा लगाते हैं। खुद ही लगाते हो? इतनी स्पीड में कैसे लग जाती है? तो सिर्फ इस इंतजार में बैठे बस अटेंडेंस लिंक शेयर हो सही। नहीं सर, बहुत पढ़ भी लेते। सर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। यस सर लॉक एंड की मॉडल में हम ये किस तरह प्रूव करेंगे कि जो यहाँ पर लफ्ज की यूज हुआ है या सबसेट के लिए यूज हुआ है? इसकी बात कर रहे हैं कि जो वर्ड की यूज हुआ सेपरेट के लिए क्यों यूज हुआ है। यस सर। वो इसलिए यूज हुआ है कि इसमें जो ये पर्टिकुलर शेप है इट्स जस्ट लाइक द होल ऑफ ए लॉक। तो इस पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर शेप वाली की ही आके इंसर्ट होगी, दूसरी नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉक एंड की मॉडल। अगर ये लेट्स सपोज ग्लूकोज के लिए है तो यहाँ पे आके ग्लूकोज से एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, सुक्रोज या लैक्टोज नहीं कर सकता ड्यू टू चेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हर एक सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर शेप का होता है और वो अपने ही जाके एंजाइम पे जाके अटैच होगा। एक जनरलाइज्ड वे दिया हुआ है कि जो सबस्ट्रेट है दैट इज जस्ट लाइक ए की। ऐसा होता नहीं है, इस तरह की रिजिड शेप होती नहीं है, चेंजेस आती रहती हैं। और सर इंड्यूस फिट मॉडल फिर किस तरह स्पेसिफिसिटी को प्रूव करेगा, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को? इंड्यूस फिट की जब मैंने आपको पहले बात की थी कि एक्टिव साइट के 2 पार्ट होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। सो सबस्ट्रेट्स जो बाइंडिंग है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है। तो उसके बाद जब बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर इसमें ओरिएंटेशन चेंज आती है, जस्ट लाइक दिस वन। इस शेप में और इस शेप में थोड़ा सा आपको फर्क लग रहा होगा। पहले आगे बाइंड करेगा, बाइंडिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। बाइंडिंग के बाद इसमें फिर जो कैटालिटिक साइट है वहाँ पे चेंज आती है। जो पहले अमीनो एसिड साइट्स एक्टिव साइट की बहुत दूर दूर होती है, वो थोड़ी प्रोक्सिमल एक करीब आ जाए तो उसके बाद फिर ये एक्टिव हो जाता है। That's
एंड देन कन्फर्मेशनल चेंज। इसके सिंपल एग्जांपल के लिए ग्लव्स की दी हुई थी। अगर आप ग्लव्स को वैसे टेबल पे रखें या पैकेट में हो तो वो बड़े उल्टे सीधे से भरे होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। बट यू ट्राई टू पुट ऑन ए ग्लव, जब हैंड पे आता है तो ये एक हैंड की शेप का बन जाता है, पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। जस्ट लाइक दिस वन, एंजाइम्स की पहले शेप थोड़ी चेंज होती है, जैसे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो ये पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं, एंड दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव साइट। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे ग्रुप्स के लिए होते हैं, और वो उस ऑयल को लाके अटैच होगा तो ये उसे चेंज कर देंगे। अब बहुत सारे एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, एक सिंगल सबस्ट्रेट के लिए। इसके जो मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ कि वो एंजाइम जिसने ग्लूकोज पे एक्ट करना है वो ग्लूकोज पे करेगा, वो अमाइनो एसिड्स पे नहीं कर सकता, या उस पे आके लिपिड्स अटैच नहीं हो सकते, उस पर जस्ट आके कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज ही अटैच होगा, स्पेसिफिक होते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे वो एक्टिव हो जाते हैं। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोसिस क्या होती है? sugars, monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स हैविंग 6 कार्बन। सो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जस्ट लाइक हेक्सोकाइनेज, ऐसा एंजाइम्स जो 6 कार्बन शुगर को फास्फोराइलेशन करता है। काइनेज का काम क्या? फास्फोराइलेशन करना। सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स पे ग्लूकोज भी अटैच हो सकते हैं, उसके अलावा गलैक्टोज भी हो सकते हैं, मैनोज भी हो सकते हैं, फ्रुक्टोज भी हो सकते हैं। सो दे आर ग्रुप स्पेसिफिक। हेक्सोसिस होना जरूरी है, आगे कौन सी हेक्सोस है वो जरूरी नहीं है। इन कंपैरिजन ग्लूकोकाइनेज, ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज को फास्फोराइलेट कर रहा है, तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है। बाइंडिंग के बाद पर्टिकुलर शेप बनेगी, दैट इज इंड्यूस्ड मॉडल। ओके सर। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, बाइंडिंग इंड्यूस्ड मॉडल क्या है, लॉक एंड की मॉडल क्या है, या एंजाइम कैटालिसिस होती कैसे है, जो हमने 4 मैकेनिज्म्स किए हैं, तो उसकी एग्जांपल्स हार्पर ने दी हुई है इन ए मच एक्सप्लेनेटरी वे। ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो आप वहाँ से ज़रूर स्टडी कर सकते हो। Okay, first in our next lecture we discuss about the Michaelis-Menten equation or Michaelis-Menten equation. थोड़ा बहुत आइडिया आपको इनिशियली पहले भी है, तो अब हम इसे दोबारा देखेंगे और उसकी बेसिस पे हम क्या एग्जाम्पशंस लेते हैं या एंजाइम्स की क्या क्या क्लासिफाई कर सकते हैं। टिल देन आई वुड लाइक टू से गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज ट्राई टू लिसन your lectures. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर।